الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آج ذی الحج کی تقریباً 16 تاریخ ہے اور ذی الحج کے مہینے میں جہاں بہت ساری اہم عبادتیں ہیں، اہم قربانیاں ہیں، وہاں پہ ایک قربانی اسلام کی ایک عظیم قربانی، عظیم شخصیت کی قربانی ہے اور وہ ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو تقریباً چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے، تیسرے خلیفہ ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، سابقون الاولون قرآن نے جنہیں کہا کہ جو ابتداء میں اسلام لانے والے ہیں، سبقت لے جانے والے، ان میں سے ان کا شمار ہے۔ جامع القرآن بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے تمام نسخوں کو جمع کر دیا اور پھر وہی نسخہ جاری ہو گیا، آج ہم وہی نسخہ پڑھتے ہیں اور قیامت تک وہی چلے گا، جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ آپ جامع القرآن بھی ہیں، ناشر القرآن بھی کہا جاتا ہے، جامع القرآن بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی صفات سے، خوبیوں سے نوازا۔ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تب بھی اللہ نے آپ کو ایک فطری شرافت عطا فرمائی تھی، آپ کے اندر اسلام لانے سے پہلے ہی فطری حیا تھا، اسلام لانے سے پہلے ہی آپ غیر اخلاقی بیماریوں سے پاک تھے، اسلام لانے سے پہلے ہی آپ بت پرستیوں سے پاک تھے، اللہ نے آپ کو یہ خوبیاں عطا فرمائی۔ تو بہرکیف آپ کو اللہ نے بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نسبی رشتہ بھی ہے اور دامادیت والا رشتہ بھی ہے۔ نسب رشتہ 5ویں پشت میں آپ کا نسب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ کا لقب ابو عمر عثمان بن عفان ہے، نام عثمان بن عفان ہے، لقب غنی ہے، اور 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے، یعنی 5ویں دادا اور
आप अलैहिस्सलाम के और हज़रत उस्मान गनी के एक ही हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन उमैया बिन अब्द शम्स और अब्द मुनाफ से आगे फिर एक ही सिलसिला नसब, बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई, आगे फिर एक ही सिलसिला नसब है अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी। तो ये आपकी नसबी रिश्तेदारी है। इसी तरह से आपकी वालिदा की तरफ से भी आपकी रिश्तेदारी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप फूफी जात बेटी के बेटे हैं, यानी कि आपकी जो नानी कह लें बैज़ा बिनत अब्दुल मुत्तलिब, उम्मुल हकीम बैज़ा बिनत अब्दुल मुत्तलिब जो अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं, यानी कि आपकी फूफी हैं, आपके वालिद की बहन है। तो इस लिहाज से माँ की तरफ से भी आपका रिश्ता है, बाप की तरफ से भी नसबी रिश्ता है और दामादियत का भी रिश्ता है कि अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो साहबजादियां एक के बाद दीगर आपके निकाह में आई, इसलिए आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन भी है कि दो नूरों वाला, यानी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो नूर, दो साहबजादियां वो आपके अक़द में आई। और ये उम्मत में इससे पहले न इसके बाद कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि एक ही शख्स के निकाह में नबी की दो साहबजादियां आई हों। ये सिर्फ हजरत उस्मान गनी की खासियत है। अल्लाह ने ये शरफ आपको अता फरमाया और किसी को ये शरफ नहीं मिला। और इसी तरह से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के ये वाहिद फर्द हैं, अव्वल मन हाजरा बिअहलिही मिन उम्मती, कि ये पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरी उम्मत में से अपनी फैमिली के साथ विद फैमिली हिजरत की है। विद फैमिली आपने माइग्रेट किया है मदीना टू हबशा, ये आप पहले, ये भी आपकी खासियत। तो ये आप अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं। और प्यारे पैगंबर ने क्या फरमाया कि हर नबी का कोई रफीक होता है, वो खास साथी होता है, बिल्कुल क्लोज होता है। और मेरा रफीक जो है वो जन्नत में उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी आपकी खासियत है। तो बहुत सारे एजाजात हैं आपके, बहुत सारी खासियात हैं आपकी, बहुत सारी अल्लाह ने आपको इनामात से नवाजा। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम लाए थे। सैयदना सिद्दीक अकबर जब इस्लाम लाए तो आपने फिर आगे दावत का काम शुरू किया। हज़रत उस्मान गनी से उनके ताल्लुकात थे पहले से, और जाहिर बात है उनका भी फैमिली बैकग्राउंड जिसे कहते हैं वो भी एक शरीफ नफ्स थे, वो भी फितरतन तबन शरीफ थे, यानी कि इस्लाम लाने से पहले वो भी बुत परस्ती से, जिनाकारी से, बदकारी बदअखलाकी से, शराब नोशी से, बुत परस्ती से, इन सब चीजों से वो भी पाक थे। उनको भी अल्लाह ने एक फितरत पर रखा और ये भी ऐसे। तो इनका आपस में एक ताल्लुक भी था, दोस्ती भी थी। तो जब इस्लाम आया तो इन्होंने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए उनको दावत दी, इनको दावत दी। और इससे यह भी पता चला है कि एक दोस्त का दोस्त पर दोस्ती का हक यह है कि उसको खैर की तरफ बुलाए। दोस्ती का हक क्या है कि उसको खैर की तरफ बुलाए। अगर खुद किसी खैर पर है तो अपने दोस्त को भी खैर पर लाए। दोस्ती का तकाजा है, उसको खैर का राह दिखाए, उसको गलत काम से रोके, वो गलत काम में मुब्तला है उसको उसके मुतालिक आगाह करे। एक दोस्ती का हक है, दोस्ती का तकाजा है। और अगर ऐसा नहीं करता कोई तो फिर इसके बरक्स हो जाएगा। अगर आप अच्छी दावत नहीं देंगे तो गलत आप पर असर कर जाएगी। बुराई तो फिर है ही है, बुराई तो अगर आप रोशनी नहीं फैलाएंगे तारीकी तो फिर है ही है, जुल्म तो है ही है। रोशनी के लिए मेहनत होती है, अंधेरे के लिए कोई मेहनत नहीं। तो इसलिए आप अगर अपने हिस्से की रोशनी नहीं करेंगे, तारीकी तो पहले ऑलरेडी बहुत है। तो इसलिए अगर आप अपने दोस्त को खैर की तरफ नहीं बुलाएंगे तो फिर वो नतीजतन क्या होगा, आप बुराई में मुब्तला। तो इसलिए दोस्ती का तकाजा यह है कि खैर की तरफ बुलाना, जिससे ताल्लुक हो उसको गाहे बगाहे तरीके के साथ, हिकमत अमली के साथ, बसीरत के साथ और उसकी इखलास, उसके जो है वो दिल में शफकत लेकर, दिल में उसके लिए खुलूस लेकर
उसको दीन की तरफ, अच्छाई की तरफ तरगीब देना एक दोस्त का दोस्त पर हक है। तो बार क्या आपका ताल्लुक था, दोस्ती थी, आपने उनको खैर की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। फितरत अल्लाह ने पहले इस्लाम पर उनकी ढाली हुई थी, इन हर किस्म की बुराइयों से आप बरी थे, तो उन्होंने इस्लाम कबूल फरमा लिया, आपकी दावत पर लब्बैक कह दिया। तो ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कह लें कि एक उनके असासा हैं कि क़यामत तक अब सैयदना उस्मान गनी की जो भी नेकियां हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खाते में पड़ती चली जाएंगी। तो बार का इब्तिदा में इस्लाम लाने वालों में से है, इब्तिदा में इस्लाम लाया, आपने इस्लाम की सोबत को इख्तियार किया, और फिर जब रसूलुल्लाह की सोबत में आ गए फिर तो बस चार चांद लग गए समझे, फिर तो दिन ब दिन तरक्की करते चले गए, और अल्लाह ने आपको क्या मकाम अता फरमाया, नबी से रिश्तेदारी भी अता फरमाई, नबी के सहाबी भी बने, अशरा मुबशरा से भी बने, नबी के तीसरे खलीफा भी बने, उम्मत के 12 साल जो है वो इस्लामी आदिल हुक्मरान और खलीफा भी रहे। ये सारी की सारी खूबियां अल्लाह ने आपको अता फरमाई। तो ये एजाजात, और फिर अल्लाह ने आपको चूंकि माल दौलत अता फरमाया था, अल्लाह ने माल दौलत अता फरमाया था, तो सखावत भी आपकी बुनियादी खूबी थी जिसकी वजह से आपको गनी कहा जाता है। माल होना और साथ में खर्च करने के लिए हिम्मत, हौसला होना, यह भी एक नेमत है। मगर ना माल होता है, दिल नहीं होता, खर्च करने की हिम्मत नहीं होती, पैसा निकालने की हिम्मत नहीं होती, दिल नहीं करता पैसा निकालें, बड़ा मोहब्बत होती है। इसी को कुरान ने बयान किया है, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, कि ये माल की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त हैं। तो माल भी हो, दिल भी हो, ये एक बड़े कमाल की चीज होती है, और वो अल्लाह ने अता फरमाया। वगरना अक्सर ये एक ही चीज होती है, जिसके पास माल है वो खर्च नहीं करता, और जिसके पास नहीं है वो कहता है अगर मेरे पास आ जाए तो मैं ये भी करता, मैं ये भी करता, मैं खैरात करता, मैं सदके करता, मैं फलां के साथ ये करता। लेकिन ऐसा भी हमने देखा है जब अल्लाह ने उसको दे दिया वो भी बकील बन गया, और कुरान ने इसको भी जिक्र किया है, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन फलम्मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही बख़िलू बिही। कि बाज़े लोग हैं जो हमसे मुआहदा करते हैं, अगर अल्लाह हमें दे दे तो हम सदका करेंगे और हम खर्च करेंगे और हम नेक लोगों में से हो जाएंगे, लेकिन फलम्मा आताहुम मिन फज़ली, जब अल्लाह उनको अपने फजल से, अपने करम से दे देता है, बख़िलू बिही व तवल्लव व हुम मुअरिज़ून, वो बुख़ल करना शुरू कर देते हैं और वो दीन से एराज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अल्लाह से माल भी मांगे, फरावानी भी मांगे, साथ में अल्लाह से सखावत भी मांगे, दिल भी मांगे कि अल्लाह मैं खर्च करने वाला भी बन जाऊं, मैं तेरी राह में देने वाला भी बन जाऊं, मेरे अंदर एहसास भी पैदा फरमा, हमदर्दी भी पैदा फरमा, ईसार भी पैदा फरमा। क्योंकि जब ईसार हमदर्दी आएगी तो फिर लोगों की खैरखाई आएगी, फिर वो खर्च करेगा। अगर ईसार हमदर्दी नहीं है तो भले दुनिया मर रही है, वो कहता है मेरा एक पैसा ना हिले, 10,000 हिला दिए तो मेरा लाख खराब हो जाएगा, 10 लाख हिला दिए, करोड़ वाला हिंसा खत्म हो जाएगा। अब वो उसी के चक्कर में रहता है सारी जिंदगी, उसी कि ये खराब हो जाएगा, ये कम हो जाएंगे, वही गिनता रहता है। तो ये एक अल्लाह की नेमत है, और ये प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की खूबी और फितरत है जो आपने सहाबा में मुंतकिल फरमाई कि जो दिया खर्च कर दिया, जो दिया नबी के राह में लौटा दिया। अल्लाह ने आपको सखावत, माल भी दी, सखावत भी, और बल्कि आप खलीफा बनने से पहले बड़े मालदार थे। जब खलीफा बने और आपकी आखिरी जिंदगी के ये हालात थे कि आपके पास तकरीबन को 2 ऊंट बचे थे, बाकी सारा खत्म कर दिया था। यह खिलाफत होती है, खिलाफत में अपना माल खर्च किया जाता है, और हुक्मरानी में और मौजूदा जमहूरियत में माल दूसरों का लपेटा जाता है, अपना बढ़ाया जाता है। खिलाफत में दूसरों का बढ़ाया जाता है, अपना खत्म किया जाता है, लौटाया जाता है। और जो हमारा तर्ज हुकूमत है इसमें दोनों हाथों से समेटा जाता है, गरीब अमीर से अमीर हो जाता है जो हुकूमत में है, और आम जो पब्लिक है वो गरीब से गरीब, नीचे से नीचे जाता रहता है। क्योंकि इसकी बुनियाद ही सिर्फ किस पर है? दुनिया पर, माल पर, मता पर।
लोगों की हुकूमत, लोगों की राय, लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए, सारा लोगों से लोगों में शिफ्ट हो रहा है। और वहां खिलाफत में क्या है कि नबी का खलीफा है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से है, और जिसके दिल में खुदा खौफी होती है, वो अपना नहीं माल बनाता, वो अपनी जायदादें जागीरें खड़ी नहीं करता, वो खुद नीचे से नीचे आता रहता है, वो खुद खत्ते गुर्बत से नीचे, लकीर गुर्बत से नीचे आ जाता है और दूसरों का ख्याल करता है, और इस तरफ अवाम लकीर गुर्बत की लकीर से नीचे जाती जाती है और खुद ऊंचा चला जाता है। तो बारकात आप मालदार थे, अल्लाह ने आपको बेहद माल अता फरमाया था और आपने भी अनगिनत मौके पर अपना माल खर्च किया, बेतहाशा माल, कई एक ऐसे मौके। तो और उसकी सबसे बड़ी मिसाल वो ग़ज़वा तबूक है, सबसे बड़ी मिसाल बेरे रूमा है। आप जब मदीना हिजरत की, मुसलमानों के पास पीने वाला पानी नहीं था, पीने का पानी नहीं था, मुसलमान बड़े तंग थे। जो एक कुआं था बीरे रूमा, एक यहूदी का कब्जा है, वो पानी पैसे से देता है, मोल देता है, भारी दामों में देता है। मुसलमान गरीब है, खरीदने की ताकत नहीं है, उधर बेसिक नीड है, पिए बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी से इशारा किया, बल्कि इज्तिमाई तरगीब दी। उस्मान गनी ने खामोशी से जाकर 20,000 दिरहम में वो खरीदा और खरीद कर मुसलमानों के नाम पे वक्फ कर दिया। और बाद में लिखा है कि आपने आधा खरीदने यहूदी से 12,000 दिरहम में, कि भाई आधा मुझे दे दो, आधा आप रख लो, एक दिन मैं इसके पानी को इस्तेमाल करूंगा, एक दिन आप करना। आपने वो खरीदा मुसलमानों के लिए, जिस दिन उनका था मुसलमानों के लिए वक्त, हर कोई पानी पी रहा है, भर रहा है, ले रहा है, घर ले जा रहा है, अपने जानवरों को पिला रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब मुसलमानों ने क्या किया, जिस दिन उस्मान गनी की बारी है, मुसलमानों की बारी है, उस दिन पानी ले लेते, भर लेते, महफूज कर लेते, अगले दिन को पीता नहीं था, लेता नहीं था। अब यहूदी समझ गया कि अब तो ये मेरा चलने वाला नहीं है, उसने वो भी सेल कर दिया। तो इस तरह आपने बीरे रूमा लिया और मुसलमानों के लिए वो वक्फ कर दिया। मुसलमानों के लिए ये क्या है, खुदा खौफी की एक बड़ी मिसाल है कि जहां पानी नहीं है, हमारे पाकिस्तान के ऐसे इलाके और ऐसा सूबा है हमारा करीबी सूबा सिंध, जहां पे आज भी लोग और बल्कि इंसान और जानवर एक जगह से पानी पीने पर मजबूर है, वहां पे साफ पानी नहीं है, आम पानी मुयसर नहीं है, गंदा पानी पीने पर मजबूर है। आज भी लोगों की ये कैफियत है कि बकरी भी वहीं से पिए, इंसान भी वहीं से पिए। लेकिन हमारी जागीरदारी सिस्टम, हमारा निजाम हुकूमत ऐसा है कि वहीं पे ऐसे लोग हैं, शायद जो मिनरल वाटर पीते ना हो, उसमें नहाते भी हो, नहाते भी इसी में हो, ऐसे उनके शाही सिस्टम है। उसी इलाके में जहां एक मुसलमान भेड़ बकरी के साथ पानी पी रहे, और वहीं से उनके कुत्ते पानी पी रहे, और वहीं से इंसान पानी पी रहे, और उसी के साथ ऐसी कौम भी आबाद है जिनके घोड़े मुरब्बे खा रहे हैं। यह है तर्ज हुकूमत जमहूरी और अंग्रेजी और गुलामाना जो हम पर मुसल्लत है। और एक ये तर्ज खिलाफत था जो प्यारे पैगंबर ने दिया था, जहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेट भरे हो और आप खा रहे हो, साथ में को प्यासा मर रहा हो। यहां पे तो ऐसा होता है, खुद प्यासे मरो, साथ वाले को पानी दे दो। वो खुद प्यासा मर रहा है, साथ वाले ने मांग लिया, उसको दे दो, खुद प्यासे मर जाओ। ये निजाम खिलाफत है और ये इसके जो वो असरात हैं। तो ये उस्मान गनी है, जिन्हें देखा मुसलमान प्यासे हैं, उनको पानी की जरूरत है, उनको इसकी, अब जैसे आजकल मौसम है, अब देख ले कितनी कहर की गर्मी पड़ रही है। अब इस मौसम में अगर किसी को कीचड़ वाला पानी को पीने को मिले, अब खुद अंदाजा लगा, और साथ में एक माहौल में बैठा हुआ अपने शशके कर रहा हो, अपना पूरा कर रहा हो, तब देखें ये मुसलमानी कहां से है। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने तो क्या फरमाया कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते कि आप पेट भर के खाना खा लें, आपका पड़ोसी भूखा हो। तो ये कैसी मुसलमानी कर रहे हैं। तो तो हमें अगर दीन इस्लाम पढ़े तो ये चीजें मिलती हैं, तो खुद भले वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो अपने ऊपर दूसरे मुसलमान भाइयों को तरजीह देते हैं, भले उनकी अपनी हालत पतली हो, खुद वो माली और जिस्मानी हर लिहाज से उनकी पोजीशन कमजोर हो, लेकिन फिर भी वो दूसरों को तरजीह देते हैं। तो ये एक वाज़ेह मिसाल है सैयदना उस्मान गनी की कि बीर रूमा आपने खरीदा, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया।
ग़ज़वा तबूक का मौका आया तो तकरीबन 40,000 का लश्कर है। पता चला कि कैसे रूम ने हमले का इरादा किया है, आप अलैहिस्सलाम ग़ज़वे की तैयारी कर रहे हैं, तो 30,000 क़यादा हैं, 10,000 सवार हैं, तो 40,000 का लश्कर है। अब तैयारी करनी है, सख्त गर्मी है, तो साथ में कुछ है भी नहीं, ना खाना पीना, ना कोई हथियार असला, कुछ भी नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को तरगीब दी कि हर कोई अपने हैसियत के मुताबिक जब वो लश्कर की तैयारी में मदद करे। तो वो उस्मान गनी थे जिन्होंने लश्कर का 1/3 हिस्सा अपने जिम्मे ले लिया कि 10,000 का जो है वो साजो सामान, असलहा, खाना पीना, हर चीज मेरे जिम्मे। और अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को जब वो लश्कर भी तैयार करके दिया, साथ में नकदी अशरफियां भी अता फरमाई, और आप अलैहिस्सलाम वो अशरफियां ऐसे हाथ में लेते थे, ऐसे जमीन पे डालते थे जैसे हाथ मारते हैं इसमें माल में, सिक्कों में, और फरमाते थे मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बाद हाज़ल यौम, आज के बाद उस्मान अगर कोई अमल ना भी करे तो इसका जो है वो पक्का जन्नती है। ये उस्मान गनी है। और बेशुमार वाक़यात है। मदीने से बाहर से ताजिर आते थे, आप माल खरीदा करते थे। एक दफा कहत पड़ा, आपने जो है वो ताजिर आए कि हमें माल बेच दें। उन्होंने कहा मैं बेच चुका हूं। उन्होंने कहा आपको इतना नफा देते हैं? उन्होंने कहा मैं इतने से ज्यादा भी बेच चुका हूं। उन्होंने कहा और ज्यादा देते हैं? उन्होंने कहा इससे भी ज्यादा पे, डबल ट्रिपल 10 गुना पे बेच चुका हूं। उन्होंने कहा इतना बड़ा कौन ताजिर है, सारे ताजिर तो हम हैं, आप किसको बेच चुके हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं अपने अल्लाह को बेच चुका हूं जिसने वादा किया है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे साथ नेकी करेगा, जो एक नेकी लाएगा मैं उसको 10 गुना दूंगा। मैंने सारा अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया है और 10 गुना से तिजारत कर ली। मस्जिद नबी की तोसी का मामला है, उस्मान गनी आगे है। और फलाही काम है, सोशल वेलफेयर का काम है, गुरबा का काम है, पानी का काम है, खाने का काम है, कहत में तो मसला है, कौन आगे आगे है? उस्मान गनी आगे आगे है। तो ये मर्तबे ऐसे ही नहीं मिलते, ये मकाम ऐसे नहीं मिलते, ये जन्नत की बशारतें ऐसे नहीं मिलती। अपना सारा कुछ दीन इस्लाम पर, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर दिया। एक वो है जो अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बान करता है, एक वो है जो सोचता रहता है, कैलकुलेशन ही करता रहता है कि इतना करूंगा तो इतना कम हो जाएगा, इतना करूंगा तो इतना घाटा पड़ जाएगा। लेकिन हजरत उस्मान गनी के अमल ने बतला दिया, खर्च करोगे क़यामत तक तुम्हारा नाम और माल भी बढ़ेगा। आज भी उस्मान गनी के नाम से सऊदिया में आप हजरात को मालूम है कि बागात भी हैं उनका, कहते हैं कि अकाउंट भी चल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं। तो खर्च करने से, तो अल्लाह की राह में खर्च करने से तो हमारा ईमान है कभी को गरीब नहीं होता, माल कम नहीं होता। हाँ जाहिरी तौर पर लगेगा कम हो गया, 1 लाख में से 50 रह गए, 1 करोड़ में से कोई जब वो 80 लाख रह गए, 20 लाख खर्च कर दिया, या ज़कात का 2.5 लाख खर्च कर दिया, तो जाहिरी तौर पर लगेगा। लेकिन मेरा अल्लाह साथ ही वादा क्या करता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद को तो मिटाता है, सदक़ात को अल्लाह बढ़ा देते हैं। अल्लाह साथ में तुम्हें इजाफे के साथ वापस करता है। इस पर हमारा ईमान है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने वाकई गनी थे, गनी बनकर दिखाया, और क़यामत तक आपका नाम जिंदा रहेगा। और जब भी सखावत का आएगा, तज़किरा आएगा, वो उस्मान गनी के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। और जब भी हया का जिक्र आएगा, उस्मान गनी के बगैर हया का बाब मुकम्मल ही नहीं होगा। आज एक और भी कॉन्सेप्ट है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा आता है वो बेहयाई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, पर्दा खत्म हो जाता है, बुरके उतर जाते हैं। बड़े बड़े लोग देखे हैं, जैसे पैसा आया अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न शो करने के लिए दुपट्टे उतर जाते हैं, औरतों के लिबास मुख्तसर हो जाते हैं, उनके जो है वो लिबास चुस्त और तंग होना शुरू हो जाते हैं, और वो बड़े मॉडर्न अपने आप को शो करने के लिए अपनी बेहयाई में पड़ जाते हैं। उस्मान गनी ने बताया कि माल वाला भी हो और कायनात में सबसे बड़ा हया वाला भी हो, असल ईमान वाला ये है। ये नहीं है कि 4 पैसे आए तो कपड़ा उतर गया, 4 पैसे आए तो लिबास तंग हो गया, 4 पैसे आ गए तो औरतें बेपर्दा बेहया हो गई, औरतें जो है वो रातों को बाहर फिरने लगी, औरतें जो है वो क्लबों में जाने लगी, औरतें मर्दों के साथ खुशगपियां करने लगी, औरतें मर्दों के साथ हाथ मिलाने लगी, औरतें मर्दों के साथ जो है वो गले मिलने लगी।
बेहूदगी को उतराई। ये कोई मालदारी की निशानी नहीं है, ये बेहयाई है, बेहयाई है, ये प्यारे पैगंबर के सुन्नत के खिलाफ है, याद रख। तो ये जरूरी नहीं। और ऊपर से जलती पे तेल का जो काम जो कर रहा है वो हमारा मीडिया, हमारे ड्रामे क्या दिखाया जा रहा है? जो अमीर दिखाएंगे वो बिल्कुल ऐसे मुख्तसर लिबास में और बिल्कुल बेहुदा लिबास में और बिल्कुल नंगे लिबास में, और जो गरीब दिखाना है, जो कमजोर दिखाना है, जो आम जो है वो लोअर किस्म का बंदा दिखाना है, वो एक पूरे लिबास में होगा, वो औरत दुपट्टे में होगी, वो पर्दे में होगी, और जो अमीर होगा वो नंगा होगा। ये दिखाया जा रहा है। तो पैसा होना ये हया के खिलाफ नहीं है। पैसा और हया दोनों एक ईमान वाले में जमा होने चाहिए। ये हजरत उस्मान गनी ने बताया, उनसे बड़ा मालदार कोई नहीं, उनसे बड़ा खर्च करने वाला कोई नहीं, और उनसे बड़ा बाहया भी कोई नहीं। तो इसलिए माल और हया कोई अलग अलग चीजें नहीं है, माल और हया दोनों एक साथ चलती हैं। कि माल वाली भी हो और निकाब और बुरके में भी हो, माल वाली भी हो और नमाज की पाबंद भी हो, माल वाली भी हो और कुरान की कारिया भी हो, माल वाली भी हो और सजदा करने वाली भी हो, माल वाली भी हो और अखलाक वाली भी हो, माल वाली भी हो और सईदा आयशा, सिद्दीका, फातिमा, रुकैया, उम्मे कुलसूम के तरीके पर चलने वाली भी हो। ये हमारे प्यारे नबी का तरीका है। और ऐसे भी हमने देखी अल्हम्दुलिल्लाह कि माल वाले भी हैं, बड़े बाहया भी हैं, माल वाले भी हैं, बड़े पर्दादार भी हैं, ऐसे भी हमने देखे हैं। और उनका कोई लेवल कम नहीं हो जाता, उनकी इज्जत मजीद बढ़ती है, अल्लाह उनको मजीद इज्जतें देते हैं। ऐसा नहीं कि बुरके से हमारे लेवल में कमी आ जाएगी हमारी इज्जत में, बल्कि एक वक्त आएगा पहले लोग आपको ताने देंगे, आपको बातें करेंगे, आपको समझेंगे कि ये तो कदामत पसंद है, फलान लोगों का मिजाज है ना, शैतानी मिजाज है। लेकिन जब आप बिल्कुल साबित कदमी से जमे रहेंगे, फिर वही लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी मिसालें देंगे। याद रखना, आप पर्दा करेंगे, आपके खवातीन पर्दा करेंगी, लोग उंगलियां उठाएंगे, एक वक्त तक बातें करेंगे, कॉन्स्पिरेसी होगी, फैमिली में बातें होंगी, चुगलियां होंगी और बड़ी ड्रामाबाजी होगी। लेकिन आप जमे रहेंगे, किसी की बातों को नहीं सुनेंगे, परवाह नहीं करेंगे, एक वक्त आएगा वो आपकी मिसालें देंगे, आपको उंगलियां उठाने वाले वो आपके पीछे चलेंगे। और ये हमने देखा है। तो इसलिए किसी के कहने से ना आप इतने मॉडर्न बने कि नंगे हो जाएं, और किसी के कहने से ना अपना दीन छोड़े कि आप अपनी हया छोड़ दें। क्या है कि हम भी मॉडर्न लगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए माल होना, हया होना, ये उस्मान गनी की सुन्नत है। तो हया आएगी, माल का तज़किरा आएगा, ग़िना का तज़किरा आएगा, उस्मान गनी का पहला नंबर। तो अल्लाह ने इनको मकाम दिया। और फिर आप अलैहिस्सलाम की बशारतें साथ ही, बहरहाल एक एक सहाबी का तज़किरा करते चले जाएं, वो तो हमारी तो जिंदगी भी खत्म हो जाए, हम नहीं कर सकते इतने वाक़या, लेकिन अपना हिस्सा डालते हैं, हम अपने आप में तज़किरे करते हैं। ये चीजें हमारे अंदर भी आ जाए, मेरे अंदर आ जाए, आपके अंदर आ जाए। ये तज़किरे करने का मकसद ये चीजें हमारे अंदर आ जाए। तो ये मुख्तसर सी चीजें जो थी आपकी जिंदगी से हमने पेश की, इसलिए ताकि अल्लाह हमें ये चीजें अता फरमा दे, ये खूबियां अता फरमा दे। बाकी एक आखिरी बात, 18 ज़िलहिज को आपकी शहादत हुई है। 18 ज़िलहिज को सन 35 हिजरी में बरोज़े जुमअतुल मुबारक, आपकी उम्र मुबारक 82 ईयर थी, 82 साल आपके थे जब आपको जुल्मन शहीद किया गया। बुलवाइयों ने आपको शहीद किया, आपके घर पे हमला करके। और आप उससे पहले भी बशारतें मौजूद थी। आप अलैहिस्सलाम ख्वाब में नजर आए और फरमाया कि उस्मान आप रोजे से थे, आप आज की इफ्तारी हमारे साथ करोगे। वो बशारतें पहले से मौजूद थी और जिंदगी में अल्लाह ने आपको अल्लाह के पाक पैगंबर के जरिए बशारतें सुना दी थी कि आप शहीद होंगे, अल्लाह आपको शहादत अता फरमाएंगे। 18 ज़िलहिज को हमारे यहाँ चूंकि शैतानी तबका भी है, वो हर किसी सहाबी की वफात पर यह खुशियां किसी न किसी बहाने मनाता है। 18 ज़िलहिज को यौम ईद गदीर के नाम से रवाफिज जो है वो ईद गदीर मनाते हैं। ईद गदीर क्या है? आप अलैहिस्सलाम हज्जतुल वदा से वापस आ रहे थे। मक्का और मदीना के दरमियान में एक जगह है खुम के नाम से, गदीर खुम के नाम से, ये एक तालाब था, जगह थी। तो वहां पे आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया था और बाकी लोगों ने सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की कोई शिकायतें या कोई ऐसी चीजें बयान की थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा लोगों को सबको दिया और फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुल मौला, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो अली से भी मोहब्बत करे, वो अली से भी
या जो मेरा दोस्त है वो अली का भी दोस्त है, अली मौला, अली भी उसका दोस्त है। तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली की फजाइल बयान फरमाए, हजरत अली से मोहब्बत का तज़किरा फरमाया, और ये हमारे भी ईमान का हिस्सा है कि अली से मोहब्बत ईमान है, अली से बुग़्ज़ वो निफाक है। ये तो ज़ाहिर बात है, कोई भी सहाबी है वो हमारे सर का ताज है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस रवाफिज टोले ने उस हदीस को लेकर हजरत अली की खिलाफत बिला फसल को साबित किया है, जो बिल्कुल झूठ है, कतई एक मन घड़त चीज है। और ईद मनाते हैं हजरत उस्मान की शहादत पर, ईद गदीर, ये भी एक उनका कह लें कि एक फितना है, एक उनकी कह लें कि एक साजिश है, एक उनका बुरा किरदार है। तो जो अल्लाह के नबी के सहाबी और नबी के दोहरे दामाद और मजलूम मदीना और उम्मत का एक असासा उसकी मौत पर खुशी मनाते हैं, तो ईद गदीर की इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं। खिलाफत बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर की है। आप अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। ये तरतीब है, इससे कोई खिलाफत बिला फसल साबित नहीं होती। आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत साबित होती है। हम भी अली से मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं जो अली से बुग़्ज़ करता है उसका ईमान ही नहीं है, लेकिन खिलाफत साबित नहीं है। और हजरत उस्मान की मौत में जो खुशी करता है, हम कहते हैं उसका भी ईमान नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने एक बंदे का जनाजा आया, उसका जनाजा नहीं पढ़ाया। इसने पूछा रसूलुल्लाह क्यों नहीं पढ़ा रहे? फरमाया इन्नहु काना युबग़ी उस्मान, कि इसके दिल में हजरत उस्मान गनी का बुग़्ज़ था, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। इसलिए अली का बुग़्ज़ भी निफाक है और उस्मान का बुग़्ज़ भी निफाक है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।